So student, this is the question. Just you write down in the copy and follow the video. Okay, keep on watching. It will help you out to solve the question. Okay. Don't forget to subscribe my channel. Hello student. Today in this video, I will solve one question that is for interest on drawing. How interest on drawing is calculated if the questions comes for monthly basis. If the questions is from monthly basis, if it is in the question mention that beginning of every month, mid of every month and ending of every month, then we have to know how to solve this question. Okay, so one question I have taken, so you just look at this question. This is the question. ABC are partners in a firm. You are informed that A withdraw 10,000 from the firm at the beginning of every month, B withdraws 10,000 from the firm at the end of every month. Again, C withdraws 10,000 from the firm in the middle of every month. So this is the question. From this you have to calculate interest on drawing. Here the rate of interest for drawing is 8%. Okay, 8% interest will be charged on his drawings. Okay, partner's drawing. So this is the question. Just you write down the question so that it will help you to solve the question. Okay student, so student, this is the question. You just write it down, just proceed with me. Okay, just continue with me. So ये question है. तो before solving this question, in this question calculate interest on partners drawing. Here partners are ABC. ठीक है, समझ में आया होगा. ABC पार्टनर है, उसने विड्रॉ किया है, कंडीशन सब कुछ दिया है. सो फ्रॉम दिस यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग. पार्टनर मीन्स ABC. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू प्रोसीड विद द सॉल्यूशन, ये नोट लिख लो. ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, जस्ट यू राइट डाउन दिस क्वेश्चन, जस्ट नोट. ओके, इन योर कॉपी इट विल हेल्प you out to solve any question if it comes in the exam. So first of all, when equal amount of drawings are made at regular intervals, then interest will be calculated for average period. Average period means here the formula is for calculating average period means the timetable. Okay, at what time it is withdrawn और कितना महीने के लिए निकाला है. ठीक है, कितना महीने के लिए उसको हम लोग चार्ज करेंगे ड्राइंग्स. ठीक है, इंटरेस्ट. तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देख सकते हो. A withdraws 10,000, B withdraws 10,000, okay, and C withdraws 10,000. The same amount is withdrawn. That is why in note लिख लो, when equal amount of drawings is withdrawn at regular basis of interval, then interest will be calculated on average period. Average period कैसे निकालते हैं? Time left after first drawing. First drawing means here every month beginning बोला है, तो इसी तरह हम लोग को ये टाइम मेंटेन करना है. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ये एवरेज पीरियड निकलता है. इसके लिए मैंने एक टेबल दिया था, फर्स्ट वीडियो आप जाके देख लो, उससे मैंने टेबल कैसे लिखना है, डायरेक्टली टेबल मेमोराइज करो, ईजी होगा. इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर. इफ़ यू रिमेंबर दैट टेबल देन नो नीड टू फाइंड आउट दिस वे. ओके, इफ़ यू रिमेंबर द टेबल, I will show you one table. Okay, in my last video I have given you one table, that is table for regular basis. If amount is same monthly basis, then beginning this, middle this and end this. ये मैंने टेबल दिया था ऑलरेडी लास्ट वीडियो में. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ माई लास्ट वीडियो. ओके, सो दिस आर द टेबल. इफ़ क्वार्टरली बेसिस ये रेट होगा, ये हम लोग का टाइम इंटरवल होगा, उसके बाद हाफ ईयरली ये होगा. तो ये फॉर्मेट जस्ट आप स्क्रीनशॉट मारो और लिख के रखो, ताकि इट विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट वी प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. ओके, फॉर दिस वी विल मेक सॉल्यूशन. ओके, सो कंटिन्यू. सो वी प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग शुरू करेंगे. ए ड्रोज हाउ मच 10,000 है कि नहीं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगिनिंग मतलब हम लोग को 1 साल तक लेना है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 1 साल तक होगा तो कितना होगा, 12 महीना होगा. बिगिनिंग मतलब जब हम लोग अप्रैल से शुरू होगा मंथ, अप्रैल 31 मार्च, तो अप्रैल 1 में उसने विड्रॉ किया, तो अप्रैल मंथ से लेके मार्च तक कितना महीना होगा, 12 महीना है कि नहीं. तो 12 इंटू 10,000 दैट मीन्स 1,20,000 इसका विड्रॉ अमाउंट होगा. उसके बाद हमें रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, हियर 8%, दैट मीन्स 8/100. ठीक है, उसके बाद हमारा जो वैल्यू था बिगिनिंग ऑफ ईयर होने से कितना महीना हम लोग को लेना है, 6.5. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6.5 मीन्स हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे. ठीक है, शॉर्ट में लिखने से क्या आएगा, 6.5 डिवाइड बाय हाउ मच, 12. तो ये रहा हमारा वैल्यू. अभी हमारा जो भी अमाउंट निकलेगा ये निकलेगा आपका. अब इफ डिवाइड करेंगे
तो इसका वैल्यू आएगा 5200, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट किसका, ए का, ठीक है। ए ने जो विड्रॉ किया था 10,000, उसमें हम लोग बिगिनिंग में लिया था, तो 12 महीने का हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, उसका ड्राइंग्स कितना आता है 1,20,000, तो इसमें हम लोग 8% कर दिया। उसके बाद बिगिनिंग कर दिया, बिगिनिंग में उसने विड्रॉ किया था, तो हम लोग ने 6.5 उसका इंटरवल लिया, ठीक है। इसके लिए ये फाइंड करने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एवरेज पीरियड। तो मैंने यहाँ लिख दिया है फॉर्मूला, इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप देन यू विल गेट 6.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बोल के लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग मतलब यहाँ पे कितना महीना बचेगा हमारा, बिगिनिंग लिया है तो मीन्स 12 मंथ्स ही होगा, 12 + 1, तो ये हम लोग को याद करना है, ठीक है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मीन्स बिगिनिंग में लेगा तो 1 मंथ रहेगा, तो उसके बाद ये फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो वेरी इजी है, तो आप फॉलो करो 6.5, ये ईजी है, याद करने से ईजी होगा। सो फर्स्ट हमारा इंटरेस्ट आया कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका है, ऑफ ए ना, पार्टनर ए है कि नहीं। तो ये रहा ए का हमारा वैल्यू आ गया। अभी हम ओके स्टूडेंट, अभी हमारा पॉइंट नंबर 2 आएगा। पॉइंट नंबर 2 के लिए बी विड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड बोला है ना, तो इंटरेस्ट ड्राइंग ऑफ बी लिख दिया। उसके बाद एंड में निकाला है, तो 12 महीने तक उसने 10,000 करके विड्रॉ करेगा, तो 1,20,000 आया। उसके बाद 8% इंटरेस्ट। उसके बाद जो फॉर्मेट है हमारा, है कि नहीं, ये फॉर्मेट हम लोग को याद करना है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, तो 5.5 हम लोग को लेना है, तो 5.5 लिख दिया। उसके बाद यहाँ आएगा 12 नीचे में, तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इसमें जो अमाउंट आएगा 4,400। उसी तरह हम लोग को सी का कैलकुलेट करना है। सी का कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सी लिखना है। उसके बाद 1,20,000 इंटू ये क्या कौन सा था क्वेश्चन, सी का मिडिल बोला था, तो उसने मिडिल में निकालो या जब भी निकालो, मंथ में निकाला है ना, तो 12 महीने तक उसको देने पड़ेगा, विड्रॉ करेगा वो, एवरी मंथ बोला है, तो 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू, अब यहाँ में कितना आएगा आपको देखना है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 सी, दैट मीन्स फॉर 6 मंथ, ठीक है। 6 महीना इंटरेस्ट है, इंटरवल है, तो क्या आएगा 6/12। तो जो हमारा अमाउंट आएगा उसका कितना आएगा, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स ऑफ सी, ये रहा हमारा 4,800। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, वेरी इजी है, इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप, ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ये पहला हम लोग का ये नोट याद करना है, आपको याद करके रखना है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, ये बोल के नहीं आता है, तो ये सब हम लोग को कॉन्सेप्ट याद करके रखना है। हम लोग का एवरेज पीरियड जो मैंने यहाँ लिखा था 6.5, इसको जानने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप। अदरवाइज इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग इन द एग्जामिनेशन देन इट विल बी बेटर फॉर यू। बहुत ही ईजी, कैलकुलेशन करने से हार्ड लगेगा, तो डायरेक्टली ये याद करो तो ईजी होगा। तो ये इंटरेस्ट इन ड्राइंग ऑफ ए ये हो गया। फिर नेक्स्ट बी का हम लोग को निकाला, इंटरेस्ट इन ड्राइंग ऑफ बी, ये रहा 4,400 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सी, तो ये रहा। तो वेरी इजी है, इफ़ यू फॉलो, इफ़ यू वॉच टिल द एंड देन यू विल रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। सो कंटिन्यू मैं अपलोड करूँगा वीडियो, यू जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग मी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड जस्ट give a comment. Okay, thank you so much. Thank you student.